Hello students, welcome to my channel. Today we will going to learn reciprocal. Okay, so reciprocal is also known as multiplicative inverse. Now the question is, what is multiplicative inverse? For example, let's take 1 by 4. So what is 1 by 4? It's a fraction. Okay, so we can multiply 1 by 4, multiply by 4. Okay, I can also write 1 by 4 multiply 4 by 1. As there is no number, so we can take 1. Now what it become? 4 multiply 1 is 4. Again 1 multiply by 4, 4. So what it become? It become, by cancellation process, at there is a 4, there is a 4. So we can cancel it. So that means 4 multiply by 1 is 4. So the answer is 1. So the fraction of 1 by 4 multiplied by a natural number or 4, it becomes 1. Fine. So what is the definition of reciprocal? So it becomes, we can write as when the product of two fractions or fraction and a natural number, when the product of two fractions or fraction and a natural number, like this is 1 by 4 is a fraction and 4 is a natural number. Fine. So when the product of two fractions or fraction and a natural number is 1, what is 1? 1 is the result. Okay, then one of them is called the reciprocal or multiplicative inverse of the other. That means, for example, let's take 1 by 3 is inverse of 3. That means inverse का मतलब होता है, अगर वही नंबर को नीचे लिख के ऊपर अगर आप लोग 1 लिखते हो, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो, वो इन्वर्स कहलाता है. वो जो नेचुरल नंबर होता है, वॉट एवर द नंबर इज़ गिवन, अगर आप उसको नीचे लिखते हो एंड ऊपर अगर 1 रहता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग इन्वर्स कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, या फिर इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं. दैट मीन्स 1 by 3 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 or 1 by 3 is the multiplicative inverse of 3. Okay? Hello students, welcome to my channel once again. So today we will discuss some of the examples of reciprocal. Okay? So let's start with the first example or first question. What is the reciprocal of 9 by 11? Okay? Earlier we have discussed what is reciprocal and what is multiplicative inverse. Okay, so let's begin with this example 9 by 11. How can you write the reciprocal of 9 by 11? First of all, you have to write 9 by 11. Okay, or the reciprocal of 9 by 11 is, you can write like this: 1 divided by 9 by 11. Okay, so what it becomes? 1 multiply 11 by 9, or simply you can write directly 11 by 9. Because there is a 1, you can check or you can write 1 upon 1 below, just below you can write a small 1 for easier calculation. So after multiplication, 11 ones are 11, 9 ones are 9. So what it becomes? 11 by 9. So the result is 11 by 9 is reciprocal of 9 by 11. This is the answer. Got it? Okay. Here is the another example or another question I have written. Divide and write the lowest form. Okay, these are the fractions. 5 by 3 by 25 by 9. Okay, so I can write like this:
5/3 divided 25 by 9. Because the by, wherever you can see the by, you can write divide sign. Okay, now you can write like this: 5/3. After this divide sign, you have to change it to the multiply sign, and you can write 9/25. The moment you change the sign divide into multiply sign, immediately you have to change this fraction. Remember this as always. Whenever you change this divide sign, you have to immediately change it to the multiply sign, and together you have to change the fraction as well. As there I was written 25/9, so I have changed there 9/25. Then cancellation process you have to do. So here is 25 and here is 9. So what are the smallest integer? 5/3 or 5 are the 3 are the integers. You can find out what are the integers which is divided by 25 and 9. So 9 is divisible by 3. So we can write 3 3s are 9. So 3 3s are 9 means 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं रिजल्ट क्या आता है 3, उसको साइड में लिखते हैं. एंड 5 को 25 को कैंसिल करना है बिकॉज 25 इज डिविजिबल बाई 5. 5 5s are 25. So I can write there 5. So what is the result? The result becomes, as there is no number, so you can easily write 3/5. ठीक है, यहाँ पर और तो कोई नंबर नहीं है. अगर कोई नंबर होता तो आप इधर सोचो, मैंने यहाँ पर 1 और 1 लिख दिया है. तो अल्टीमेटली लोएस्ट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई नंबर बच जाता तो यहाँ का जो नंबर है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 1s are 3, एंड 5 को इधर से जो भी नंबर रिमेनिंग रहता उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इधर से रहता. ठीक है, हियर इज द आंसर इज 3/5. गॉट इट? See, the another example I have written multiply. You have to do simply the multiply. What I have written 28/9 multiply 6/5. See, earlier the problem was about divide or by, but in this case there is multiply, means no change of sign. So what you have to do, simply you have to write 28/9 multiply 6/5. Now you have to see, you have to find out the smallest integer. Is there any smallest integer which is divisible by both of the number? No. That means यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है ताकि दोनों नंबर को डायगोनली और कॉर्नरली हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा कोई भी पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है जो कि प्रीवियस केस में था, जैसे कि 5 छोटा नंबर था जिससे हम लोग 25 को ईजिली डिवाइड कर लिए. बट यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है. इस केस में क्या करेंगे, दोनों नंबर पे हम लोगों को एक ऐसा नंबर चूज़ करना है. देखना होगा कॉमन नंबर कौन सा है. 9 और 6 में कॉमन नंबर 3 होता है. ठीक है, वो आपको देखते ही टेबल याद करना होगा कि ऐसा कौन सा टेबल है जिस पे ये डायगोनली मतलब ऐसे कॉर्नरली क्रॉस ऐसे अगर कोई सिंबल बनाते हैं उसको हम लोग डायगोनली बोलते हैं. डायगोनली आपको चेक करना है. रिमेंबर, सीधा या फिर ऐसे नंबर नहीं चेक करना है. डायगोनली आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है या फिर कॉमन नंबर निकालना है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो. यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होता है. कैसे? 3 से हम 6 को अगर कैंसिल करते हैं तो क्या आता है 2. अब अभी 3 से 9 को अगर कैंसिल करते हैं क्या आता है 3. ठीक है, तो यहाँ पर क्या नज़र आता है, 28 को तो कोई भी नंबर से नहीं जाता. अगर 2 अगर इधर होता फिर से ये 2 से हम लोग 28 को कैंसिल कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर 3 है और 28 3 से डिविजिबल नहीं है. दैट मीन्स द आंसर इज सिंपल 28 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 3s are 15. So 28 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है, 8 2s are 16, कैरी 1, 2 2s are 4 and 5 and 3 5s are 15. So 56/15 is the result. बट लोएस्ट फॉर्म में उसको हम दोबारा से डिवाइड करके फ्रैक्शन में लाके
जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम आंसर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला जो नंबर था 3/5, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, बट इसको हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल चूज़ किया। हालांकि ये आपकी बुक से नहीं है, मैम ने ऐसे ही दिया है। सो इसको अगर हमने ऐसे ही लिखा तो क्या आता है, 15 से 56 पे कितने बार जाता है? एनी आइडिया, एनी गेस? जल्दी करो, क्विक। एनी गेसेस? ओके, सो लेट मी डू. So 15 forza is 60. So 60 is a bigger number than 56. So we have to do by 3. 15 3s are 45. 6 minus 5 is 1. 5 minus 4 is also 1. So what is the result? 3 of 11 by 15. This is the lowest form of this answer. समझ में आया? दोबारा मैं कहती हूँ, पहले जो भी नंबर दिया जाएगा मल्टीप्लाई में, सिंपली उसको सेम टू सेम लिखना है एज इट इज़। उसके बाद चेक करना है डायगोनली कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है। टेबल हमें याद करना है, टेबल याद करने के बाद मैचअप करना है कौन सा नंबर से हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर से डिवाइड करेंगे वही डिवाइड वाला जो रिज़ल्ट आता है उसको लिखना है। लिखने के बाद उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, मतलब जैसे हैं वही नंबर से हमें लिखना है। 28 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3/5। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, वट एवर द रिज़ल्ट हमें लिखना है। उसके बाद अगर ऊपर अगर बिग नंबर रहता है उसको डिवाइड करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो भी रिज़ल्ट आता है उसे हमें आंसर के तौर पे लिखना है। समझ में आया? ओके, नाउ स्टार्ट विद द अनदर एग्जाम्पल। देयर इज एडिशन। आई हैव रिटन एडिशन। सो एडिशन में क्या करना है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। सो कि पहले क्या करना है, फ्रैक्शंस को नॉर्मल पे लाओ या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आता है, 2 नीचे जैसा है वैसे ही लिखना है। फिर एज पर द थ्योरी और एज पर द रूल्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, ऐसे हमें ब्रेक करके ही लिखना है। और दोबारा सेम तरीके से 4 4 एंड प्लस 3 जो नंबर है उसे बगल में लिख देना है सिंपली। नीचे सेम रहेगा नंबर, 5 2 10 प्लस 3 लिखना है और ये स्पेस देने के बाद ऐसे लिखना है 4 4 4 16 प्लस 3। अभी क्या आता है रिजल्ट, 2 13 प्लस 16 प्लस 3 इज 19 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 2 और 4 का एलसीएम करना है। वो रफ में कर लेना आप लोग। कैसे? रफ वर्क में 2,4 को जैसे हम लोग पहले लॉन्ग डिवीजन में करते थे, 2 से डिवाइड किया तो 1 एंड 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2। अल्टीमेटली जो एलसीएम होता है तो क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ द 4। सो 4 हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 2 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आता है 2। सो वही 2 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1, 1 से 19 को मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट क्या आता है, 13 2 26, 19 1 19 4। अगेन रफ वर्क आपको साइड में करना है 19 प्लस 26 को। जो लोग मुंह में मतलब वर्बली कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, और जो लोग वर्बली नहीं कर सकते रफ वर्क मस्ट फॉर देम। एंड 6 प्लस 9 इज द 6 2 12, 13 14 15 and carry is 1 2 plus 3 plus 1 4 is the answer. So 45/4। अगेन लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 45/4 हम लोग छोड़ नहीं सकते। सो इसे हम लोग कन्वर्ट ऐसे करेंगे, 4 1 4 भी कर सकते हो या फिर 4 1 4 ही करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 4 1 4 लिखते हैं, ओके। देन 1 अगेन 4 1 4 कैरी 1। सो द आंसर इज 1/4। जो भी रिमाइंडर होता है वो ऊपर बैठता है और जो मेन नंबर होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। सो 11 of 1/4। See, the last example I am talking about the subtraction part, as we have done the other operations. So we will begin with the subtraction. So subtraction, I have chosen 2 of 1/3 and the other fraction is the 4/6. 3 2s are 2 multiplied by 3 plus 1. Again similarly I have to write the same fraction
or we can write it as a 2 by 3. Why so? Because the 4 by 6 is divisible by 2. There is a common number. Okay, so I have written in a very small number 2 by 3. ऐसे तरीके के एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है ऊपर। अगर सेम नंबर हो, इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, अगर दोनों में सिमिलरिटीज होता है उसको आप स्मॉल बना सकते हो। ठीक है, 4 by 6 को अगर आप 2 by 3 लिखते हो, दैट इज़ करेक्ट। ओके, सो नाउ सी 3 and 3 इज़ द कॉमन नंबर। सो सेकेंड लाइन पे आपको लिखना है 3 to 6 + 1 एंड देयर इज़ 2 by 3। यहाँ पर 3 and 3 का एलसीएम 3 ही आता है, सो कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 और डायरेक्टली यहाँ पर 7 - 2 लिखते हैं एंड दिस इज़ द 5 by 3। 5 by 3 is the answer and this is the lowest form. Is it? No. 5 by 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज जो अपर नंबर है वो बिग नंबर है। So that's why we have to divide 3 by 5. What it become? 3 ones are 3. Remainder is 2. So the answer is 2 by 3. Answer, the lowest form is 1 of 2 by 3. Got it? This is the answer. I hope you people have understood. If you have any doubts or any query, you can directly contact me, or you can mention in the comment box also. Thank you so much.